the transition take place from, being a bureaucrat, a career diplomat, to becoming a politician, joining Mr. Modi's cabinet? Mm-hmm. How did you make that transition? What tools did you employ? Well, I didn't make the transition. It happened. Mm-hmm. I mean, it happened because, as you know, I come from a bureaucratic family. We don't have anybody remotely in the family who's entered politics in any party at any time. It had not crossed my mind. I don't think it had crossed the mind of anybody else in my circle. And then, lo and behold, what happened in May of 2019 happened. Now, once I entered, I must say, in all honesty, I myself was very unsure. I mean, I had watched politicians all my life. One of the things you get to do in the Foreign Service, by the way, is you actually, perhaps much more than other services, you see politicians up close because you see them abroad. You're kind of working with them closely. You're counseling them. So it's one thing to watch, but to actually join politics, to become a cabinet member, to stand for Rajya Sabha, because when I was selected, I was not even a member of parliament. So each of this kind of happened one by one. I slid into it, sometimes without knowing it. You learnt by watching others. That's something, we say sometimes you go to any foreign environment, you kind of you pick up by. So for me, this wasn't a foreign environment, but it was a different environment. So, you looked at others, more senior people, more experienced people in the cabinet, in the party, in other parties. I mean, I even today, watch me in parliament. I do follow a lot. I look very carefully at what people are doing, both in my own party and other parties. I think there's a lot to learn from everybody. So you get into it step by step. Sometimes you surprise yourself. There is a learning curve. I'd be honest with you out there. There are times when you are a bit hesitant or a bit even nervous. But then, you do it once, you do it twice, you slowly grow over it. So, to stand up there, to reason with people, to make a speech, even sometimes, because in bureaucracy, until really the Prime Minister, that is 2014, Prime Minister Modi's government, mostly people were used to speaking in English. So there was a language bit, there was a subject bit, there was a environment bit. There's a different culture also. But as your skills as a diplomat, I guess it would have equipped you to win friends over easily, isn't it? I don't think it's so much a question of winning friends. I mean, yes, it does help when you're a diplomat. You in a sense are almost trained, I would say, to get along, to get the most out of situations. Some of it is also different people are made different ways. I mean, you would see I very rarely get into anything personal with people, even when I'm provoked at times. I think people are just made different ways. But I would say this. I mean, it will be 4 years this summer. It's been a very, very interesting 4 years. I'm happy to talk with you later on about it. But when I look at these 4 years, for me, actually, it's been 4 years of very intense learning. Going to a state which I had really very little knowledge of. I'd been Gujarat. A few times Gujarat. Then having a particular area, as an MP, you work on a village or in a particular constituency. So all of these were learnings, and I find it very interesting. I find every day is a new day. I'm, as you can see, quite enthusiastic about it. Yeah. When Mr. Modi picked you to be part of his cabinet in such an important portfolio, everybody thought that, you'd be like a technocrat or somebody, like, you bring domain expertise and you'll kind of restrict your
karma into that region. But then one saw, you evolved. You became like any BJP karyakarta, like any BJP worker. You're part of the party. You take the party line. You go to all states, not just Gujarat. You're going to Karnataka. You go to Tamil Nadu. I've seen you going everywhere. And speaking about the party, it's become part of your the political part has also become part of your making now. For me, it's interesting. That's how it seems to you. But look, this government, this cabinet is very much a team cabinet. Okay, so you don't do your own thing out here. You may have a background, you may come from a stream, but this very idea that you will do your domain, as you say, be a technocrat, I don't think it gels with what is this cabinet. Secondly, when I was selected as a minister, I was not a member of parliament. I was not a member of a political party either. I had the choice of whether I would join a political party or not. There was no compulsion on it. Nobody brought up that subject. It was something which was left to me. I joined because when you are joining a team, you join it wholeheartedly. That is where you give your best performance and where you get the best support. And secondly, I really reflected on what is the meaning of actually joining a political party. It's not a decision I took lightly. And as someone who's studied and analyzed politics all their life, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक इंटरव्यू इस वक्त दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कैसे उनकी पूरी जो जर्नी है, पूरा उनका अब तक का किस तरीके से एक टेक्नोक्रेट से, एक आईएफएस ऑफिसर से अब वो एक राजनेता के तौर पर देखे जा रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी में उनका पूरा कामकाज चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी मुख्य स्टोरी की, आज सवाल इंडिया का में, जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। शिवसेना का नाम निशान छीनने के बाद उद्धव गुट जो है उसकी मुसीबतें लग रहा है कि बढ़ती जा रही हैं। अब उद्धव ठाकरे से संसद भवन से में उनका जो कमरा था, शिवसेना का जो कमरा था, वो भी छीन लिया गया है। शिंदे गुट या शिवसेना ने लोकसभा सचिवालय से संसदीय दल का दफ्तर जो है उसे देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब शिवसेना जो कि शिंदे गुट के अधीन है, उसको संसद भवन का कमरा नंबर 128 अलॉट कर दिया गया है। इससे पहले उद्धव गुट के हाथ से विधानसभा में शिवसेना का कार्यालय छिन गया था। साथ ही बीएमसी के हेड ऑफिस में शिवसेना का जो दफ्तर है उस पर भी शिंदे गुट ने कब्जा करने की कोशिश में वो इस वक्त जुटे हुए हैं। इसके अलावा शिवसेना भवन को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। बताया यह जा रहा है कि लीगल जो कानूनी कंपनियां हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। चैरिटी कमिश्नर के पास शिकायत की गई है कि सेना भवन अगर शिवाई ट्रस्ट का है तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर क्यों हो रहा है। यदि आज शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और चुनाव आयोग के फैसले के बाद यह पहली बैठक हो रही है, बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों का नाम तय किया जा सकता है। शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर शिंदे का नाम भी जो है वो तय किया जा सकता है। अब शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट के पास जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवसेना भवन पर किसका कब्जा होगा। क्या किसी तरीके से शिव सैनिकों को और आम जनता की जो राय है वो क्या है, मतलब पार्टी पर तो कब्जा लग रहा है कि धीरे धीरे शिंदे गुट का मजबूत होता जा रहा है, पर जमीन पर लोगों की और शिव सैनिकों के दिल में किसका राज है। इसी बात को समझने के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह पहुंचे लोगों के बीच, उनसे बात करने के लिए। उद्धव ठाकरे के पास से पार्टी का नाम गया, चुनाव चिन्ह गया, और कल जो है विधान भवन में जो शिवसेना का कार्यालय था, एकनाथ शिंदे गुट ने उस पर भी कब्जा कर लिया। अब उनकी आंखें बीएमसी में शिवसेना कार्यालय पर लगी है। लेकिन इस बीच एक नया मोड़ आ गया है। शिवसेना भवन जो कि शिव सैनिकों के लिए एक मंदिर है, वो उस पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। और एक यशास करके लीगल फर्म है, उन्होंने चैरिटी कमिश्नर में शिकायत की है
कि अगर सेना भवन शिवाई ट्रस्ट का है, जो कि पब्लिक ट्रस्ट के तहत में रजिस्टर है, तो वहां पर पॉलिटिकल हैपनिंग क्यों, यानी कि राजनीतिक गतिविधियां कैसे की जा सकती है। यानी कोशिश कहीं ना कहीं ये भी है कि उद्धव ठाकरे को इस शिवसेना भवन से भी दरकिनार करने की। इसको लेकर क्या सोचते हैं दादर में रहने वाले शिवसेना से जुड़े लोग और आम आदमी, इसके लिए हम बात करते हैं। कुछ लोग हमारे पर यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा कि क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सेना भवन को लेकर भी एक सवाल उठा है कि एक पब्लिक ट्रस्ट का है, शिवाई ट्रस्ट का है, तो क्या ये शिवसेना के पास ये रहना चाहिए, यानी उद्धव ठाकरे के पास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैं एडवोकेट सुरुवे बोल रहा हूं। ऐसे बात है कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 का, वो एक्ट से ट्रस्ट कैन ओन द प्रॉपर्टी, ट्रस्ट कैन ओन द लैंड। तो बात ऐसी है कि ये शिवाई ट्रस्ट का अगर ये लैंड है, शिवाई ट्रस्ट का अगर ये बिल्डिंग है, तो उसमें कोई ये नहीं है। अभी बात रही है ये शिंदे गुट की। शिंदे गुट को अभी ये शिवसेना चिन्ह और शिवसेना जो नाम मिला, उसके वजह से अगर उन लोग को क्लेम करना है शिवसेना भवन पे, तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रस्ट पे आना है। ट्रस्ट का जो मेजॉरिटी होगा, ट्रस्ट का जो एक्ट और बायलॉज होगा, उस हिसाब से होगा, और ये जो मेंटेन करने के लिए शिवसेना को दिया। तो सवाल ये उठाया गया है कि अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसे हो सकती है? नहीं, पब्लिक ट्रस्ट कैन आल्सो गिव द प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस, पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं उसमें। तो ये जो विवाद उठाया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या सेना भवन को भी छीनने की कोशिश है उद्धव ठाकरे से? नहीं, अभी ये विवाद नहीं है। जब भी मुख्यमंत्री शिंदे ने बोल दिया कि ये हमारा उसमें कोई क्लेम नहीं है, तो अभी ये विवाद भी नहीं है, ऐसा हमें लगता है। आप तो बता रहे थे वकील कि इतना आसान नहीं होगा सेना भवन पे कब्जा करना। उधर शिवसेना की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कल करीब 3:30 बजे सुनवाई जो है वो इस पर रहेगी। दरअसल उद्धव ठाकरे की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को ही सुनवाई की मांग की थी। कहा गया था कि अगर कोई संरक्षण आदेश पारित नहीं किया गया तो बैंक के खाते समेत सब चीजों पर टेक ओवर हो जाएगा। इस मामले में कल अब सुनवाई होनी है। आज उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने ये मुद्दा लिस्टेड मेंशनिंग में उठाया, इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट था उसके ऊपर। तो कोर्ट ने कहा है कि आज महाराष्ट्र के संबंधी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले से ही बैठने वाला था, तो वो बेंच चलेगा, वो कल भी चलेगा। दोनों तरफ से, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी उद्धव ठाकरे जी की तरफ से, और नीरज किशन कौल और महेश जेठमलानी जी एकनाथ शिंदे की ओर से। और उसके ऊपर ये इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट है उसके ऊपर कल आर्ग्यूमेंट्स हो गए 3:30 बजे। आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में महाराष्ट्र का मेन मैटर चलेगा। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले बीएमसी चुनाव और जो बाकी चुनाव हैं उसमें उद्धव ठाकरे के प्रदर्शन पर, क्योंकि अब उनके हाथ से शिवसेना का सिंबल भी निकल चुका है, पार्टी का नाम भी निकल चुका है, क्या फर्क पड़ेगा? नाम निशान एकनाथ शिंदे के पास, क्या शिवसैनिक भी उनके साथ खड़े हुए हैं? और सुप्रीम कोर्ट से क्या बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की विरासत को? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आनंद दुबे साहब हैं, प्रवक्ता हैं उद्धव ठाकरे जी का जो गुट है उस शिवसेना उसके। हमारे साथ विजय चोरमारे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ क्लाइव कैस्ट्रो जुड़ रहे हैं, एनसीपी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। कृष्णा हेगड़े जुड़ रहे हैं जो शिवसेना के नेता हैं, और अभिषेक त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये बात समझना चाहता हूं, आनंद दुबे साहब, नाम भी गया, निशान भी गया, बार बार ये बात उठ रही है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो क्या सिर्फ एक जागीर के तौर पर एक ही परिवार में एक सदस्य से दूसरे के सदस्य की तरफ जा सकता है? अगर शिवसैनिकों के ज्यादा से ज्यादा एमएलएज जो हैं, एमपीज जो हैं, वो अगर खड़े हुए हैं इस वक्त शिंदे साहब के साथ, तो क्या ऑप्शंस बचते हैं उद्धव ठाकरे के साथ? अंकित भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि यदि एक ही परिवार के लोग नेता हैं और दूसरे के पास क्या वो नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, ये मैं सोच रहा था आप पूछेंगे। अब आते हैं कि एमपी एमएलए ही पार्टी है। आप मुझे आज बताइए कि क्या इस देश में जो लोग चुनकर आते हैं वही पार्टी होते हैं, या उसके अलावा भी कोई पार्टी हो सकती है?
एक तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है, आपके सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर सिर्फ इलेक्टेड लोग ही पार्टी नहीं है तो फिर चुनाव आयोग ने यह निर्णय कैसे दिया कि जो लोग चुन कर आए हैं उनकी वोटों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये पार्टी अब उनको दे दी जाए। फर्ज करिए कि कल ये जो 40 एमएलए और 13 सांसद कल चुनाव हार जाते हैं जी, और उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में 100 लोग चुनकर आ जाते हैं, तो क्या चुनाव आयोग वोटों की संख्या पे वापस शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह उनको दे देगा? क्योंकि जब वो चुनाव जीते थे 2019 में, तब वो उद्धव ठाकरे जी द्वारा साइन किए गए बी फॉर्म को लेकर उद्धव ठाकरे जी द्वारा किए गए प्रचार के ऊपर चुनकर आए थे। ठीक है। न कि एकनाथ शिंदे ने कोई फॉर्म दिया था, न कि एकनाथ शिंदे ने कोई चुनाव चिन्ह दिया था। एकनाथ शिंदे भी एक कार्यकर्ता थे जो उद्धव ठाकरे जी के समर्थन से चुनकर आए थे। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि यह निर्णय किसी न किसी कीमत पर चुनाव आयोग को वापस लेना होगा। और कृष्णा हेगड़े साहब, आवाज जो है वो यही उठती है कि एकनाथ शिंदे बिल्डिंगों पे कब्जा करके, एमपी एमएलए को अपने पास करके, शिवसैनिक जो है जिनसे शिवसेना बनती है, जिन्होंने सालों तक खून पसीना बहाकर इस पार्टी को बनाया, उनके दिलों पर भी जीत पाएंगे क्या? बाला साहब ठाकरे ने जो तय किया था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे चलाएंगे, उस फैसले को एकनाथ शिंदे लोगों के मन से हटा पाएंगे? अंकित जी, सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने 25 साल बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे लड़ी, और उन्होंने ये बात कही कि कोई भी दिन अगर मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और यही चीज सम्मान्य उद्धव जी ने किया। उन्होंने जाके जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसको डाइल्यूट किया, उसको खत्म किया, और जाकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। 2019 में जब वो इलेक्शन लड़े थे, वो बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी थी, और महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली थी सेंटर में, और स्टेट में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली थी, उसके लिए दिया था, और सब ये बात जानते हैं। लेकिन उद्धव जी ने क्या किया कि उनको लगा कि अभी हमें कुछ संख्या मिली है और बीजेपी हमारे बिना सरकार नहीं बना सकती, तो उन्होंने जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई जी। ये कभी बाला साहेब ठाकरे जी को मान्य नहीं होता। और जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो संख्या है, हमने 11 लाख प्रतिज्ञा पत्र दिया है, 8 से 10 स्टेट प्रेसिडेंट हमारे पास है, 13 आउट ऑफ 18 एमपी हमारे पास है। हाँ, लेकिन सर ये कहना कि देखिए बाल साहब ठाकरे इसको कभी मंजूर ना करते, वो इस बात को मंजूर करते कि उनके पुत्र को इस तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा, या इस बात को मंजूर करते कि लोग, या इस बात को मंजूर करते कि एकनाथ शिंदे, आज कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कठपुतली बन के खेल रहे हैं सिर्फ सत्ता में कुर्सी पे बैठने के लिए। तो जिस अपॉर्चुनिज्म का आप आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे पे, वो अपॉर्चुनिज्म तो शिंदे साहब के साथ भी दिखाई पड़ रही है। नहीं, अपॉर्चुनिज्म नहीं है, ये ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो मंत्री थे वो सब जो फंड है, डेवलपमेंट फंड, वो अपनी तरफ खींच रहे थे, और शिवसेना के ये वही राष्ट्रवादी है जिसके साथ सुबह सुबह फडणवीस साहब ने जाके फटाफट शपथ ले ली थी, मुख्यमंत्री बनने के लिए 5:30 बजे तैयार हो गए थे। नहीं, वो पूरी राष्ट्रवादी नहीं थी, वो कई विधायक थे। अच्छा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, वो जो वित्त मंत्रालय था राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में, तो सब डेवलपमेंट के फंड उन लोग ले रहे थे, और अच्छा। शिवसेना के जो विधायक थे वो डेवलपमेंट के काम वहां पर नहीं कर सकते थे। पहले सवाल ले लूं, फिर मैं दोबारा आपके पास घूम के आऊंगा समझने के लिए। लेकिन क्लाइड कास्ट्रो साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो इस वक्त की जो राजनीतिक उठापटक जारी है, चल रही है, इसमें शरद पवार साहब हो या कांग्रेस पार्टी हो, सरकार में तो थी वो उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन अब जब वो शायद शिवसेना सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक तौर पर उनके पूरे करियर पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तब ऐसा देखने को क्यों लग रहा है कि बाकी पार्टियां थोड़ा किनारा करके दूर से खड़े होकर देख रही हैं कि हाँ भाई, अब जो भी इनकी लड़ाई है खुद निपट लें? शरद पवार साहब ने तो यह तक कह दिया कि देखिए, मैं इसमें कुछ बात नहीं करूंगा कि उनके उसमें इलेक्शन कमीशन किसको क्या दे रहा है। अकेला छोड़ दिया गया है क्या उद्धव ठाकरे को? अंकित, उद्धव ठाकरे जी को महाविकास अघाड़ी ने अकेला छोड़ा नहीं है, हम सब साथ में हैं।
ये देखने का नजरिया और बयानबाजी करने का जो तरीका है वो ये बीजेपी कर रही है कि उन्हें हमें छोड़ दिया, हमने किसी को छोड़ नहीं दिया। और एक बात ध्यान रखिए, यहां पर मुद्दा क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया है, हम भावनाओं की बात कर रहे हैं, बयान करने की बात कर रहे हैं, शपथ विधि की बात करें, ये सब चीज से इलेक्शन कमीशन क्या लेना देना है? उनका काम जो है वो संविधान में जो लिखा गया है उस हिसाब से काम करना है जी। कि अगर वो भावनाओं में बह जाए और अगर बयानों में बह जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? वो फेल हो जाती वहीं पर। दे हैव टू शट द शॉप। और अगर बात करने वाले ऐसे बात करते, सुबह शपथ हुई, ये हो गई, कृष्णा हेगड़े जी खुद तो साथ में थे जब अभी वो प्रवक्ता बन रहे इसलिए अलग भाषा बात कर रहे हैं। अगर भावना और बयान की बात करना तो हम बहुत सारी बात करें, कहना एक ही बात है। नहीं सुन लीजिए, एक 30 सेकंड सुन लीजिए। कहना एक ही बात है कि जब ये पूरा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? तो क्यों ये इतनी जल्दबाजी क्यों की उन्होंने? अभिषेक त्रिपाठी, यही आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इसी से लेकर ईडी तक सबका इस्तेमाल राजनीति में कम से कम विपक्षियों के खिलाफ हो रहा है। ऐसा आपके ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या कर रही है, जो उनके साथ उनकी सहमति से या उनके तरीके से नहीं झुकेगा उसकी पार्टी को ऐसे तोड़ दिया जाएगा, उसे अपनी पार्टी से अलग कर दिया जाएगा। उसके लिए चाहे ईडी का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे ईसी का। ऐसा आपके ऊपर आरोप लग रहा है। देखिए, ईडी का इस्तेमाल उन पे ही होता है जो गलत होते हैं। हमारे आप पे तो हुआ नहीं, क्लाइट जी पे तो हुआ नहीं, बाकी बहुत से लोग हैं जिन पे ईडी का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमिशन ने जो तय किया है, अपनी बात पूरी करने दीजिए। कैस्ट्रो साहब, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सर, आपने अपनी पूरी बात रखी, उनकी बात भी सुनिए। एक मिनट, अंकित मेरा नाम लिया तो जवाब देता हूं। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र, ये लोगों पे तो ईडी का नजर। सर, एक करके देखिए, हम आपको पता है हम लोग एनडीटीवी पर हम एक के ऊपर एक चीखने वाली बहस करते नहीं है। आपने अपनी बात रख दी है सर, उनको अपनी बात रख दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, जवाब ले लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है मात्र 24 घंटे बाद आज के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें पता चल जाएगा। त्रिपाठी जी ये बताइए, इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके का फैसला लिया हो, जब दो गुटों के बीच में लड़ाई चल रही हो तो उन्होंने तुरंत वो आके एक ही गुट को सब कुछ दे दिया हो? नहीं, देखिए, तुरंत तो कुछ हुआ नहीं है, काफी समय हो गया इस बात को। अगर इलेक्शन कमीशन की बात आप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ विधायक है वो भी देखा जाएगा, सांसद है वो भी देखा जाएगा, जो संगठन में पदाधिकारी हैं उनका भी गिनती की जाएगी, वो सब की गई। ऐसी कोई भी चीज गिनती नहीं की गई। मैं एक सेकंड के लिए आप लोगों को रोकना चाहता हूं। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मामले पर आज भी कुछ बातचीत हुई, तो अहम जानकारी लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ठाकरे गुट से कुछ सवाल पूछे गए। कहा गया कि अगर सिर्फ एक या दो स्पीकर भटके हैं तो हम अपने नियमों को क्यों बदलें? स्पीकर के कामकाज की समीक्षा पर पार्टियों में कितनी बार चर्चा की है? क्या 10वीं अनुसूची की समस्या पर कभी संसद में चर्चा हुई है? इस तरह के कुछ सवाल पूछे गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष हमें दे रहे हैं इस वक्त। आशीष, किस परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछे गए थे और क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से लगातार यहाँ पर कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे, बहस कर रहे थे। उन्होंने बार बार वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे थे कि स्पीकर की भूमिका जो है अब संवैधानिक भूमिका नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं पार्शियल हो जाते हैं, पार्टी के साथ लिंक हो जाते हैं, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए 10th शेड्यूल के मामले में स्पीकर के जो अधिकार हैं अयोग्य घोषित करने के, उस पर विचार होना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली ने ये कहा कि क्या हम घड़ी की सुइयों को वापस कर सकते हैं? अगर एक या दो स्पीकर भटक गए हैं तो क्या हम पूरे कानून को चेंज कर दें? जस्टिस नरसिम्हा भी इस बहस में शामिल हुए। उन्होंने खुद कपिल सिब्बल से पूछा, जो खुद भी बहुत पुराने सांसद रहे हैं, पार्लियामेंट से जुड़े हुए रहे, उनसे पूछा कि क्या किसी सांसद ने या किसी पार्टी ने आपस में इस पे चर्चा की? क्या कभी किसी संसद में इस पे डिबेट की? कितनी बार ऐसा हुआ कि जब हमने चर्चा की, अगर कोई संवैधानिक प्रावधान काम नहीं कर रहा है तो उसको बदलने का काम संसद का है, तो हम इसमें दखल क्यों दें? क्योंकि हम यहाँ सिर्फ करने के लिए हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि ये जो सिस्टम है, इसको, ये कानून, ये
चेंज हो, क्योंकि उसको इससे फायदा होता है, क्योंकि उसी की पार्टी का स्पीकर होगा, उसको फायदा देगा। तो ये डिबेट अब कल भी जारी रहेगी। आज इतना ही था, लेकिन कपिल सिब्बल ने लगातार सवाल उठाए हैं कि इलेक्शन कमीशन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था जब तक के सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। उसको अपने हाथ होल्ड करने चाहिए थे, उसे इस फैसले को नहीं देना चाहिए। टिप्पणी करेगा वो बहुत जरूरी होगा देखना, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरीके के फैसले को, और बिल्कुल बीएमसी चुनाव से पहले जिस तरह का जो फैसला आया उसका असर पर भी कुछ ना कुछ वही बात जरूर निकलेगी। हमारे साथ विजय चोरमौर्य साहब भी जुड़ रहे हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, महाराष्ट्र की राजनीति पे बड़ी बारीक नजर रखते हैं। चोरमौर्य साहब, एक बड़ा सवाल अब यही पूछा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक जो फ्यूचर है, भविष्य क्या होगा? क्या उनके पास एक सिंपैथी वेव होगी? जनता ये कहेगी कि देखिए उन्हीं की पार्टी से, उनके पिता की बनाई हुई पार्टी से उन्हें किस तरीके से निकाला जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल करके निकाला जा रहा है, या लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था बाल ठाकरे के सिद्धांतों से, इस वजह से उनको सिंपैथी नहीं मिलेगी? अंकित जी, एक बार ध्यान में रखनी चाहिए एक बात की, इलेक्शन कमीशन का जो शिवसेना के नाम और चिन्ह के बारे में जो फैसला आया है, उसके आगे उद्धव ठाकरे की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। मगर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उन्हें दिलासा नहीं मिल गया, उन्हें आश्वस्त नहीं किया गया, तो उनके सामने एक ही विकल्प होगा, वही होगा लोगों में जाके चुनाव लड़के चुनाव में अपनी पार्टी का जो ताकत है वो सिद्ध करना चाहिए। मुझे लगता है मुंबई कारपोरेशन के इलेक्शन के सिवाय इसकी असली परीक्षा जो होगी कि महाराष्ट्र की विधानसभा और लोकसभा की जो इलेक्शन होगी, उसमें असली परीक्षा इसकी हो सकती है। क्योंकि मुंबई कारपोरेशन की जो इलेक्शन है, मुंबई कारपोरेशन की इलेक्शन अलग परिप्रेक्ष्य में होगी। वह बीजेपी पहले से ताकत जमाए बैठे है। वह शिंदे गुट को अगर शिवसेना का नाम मिल गया हो, चुनाव मिल गया हो, मगर शिंदे गुट मुंबई कारपोरेशन के इलेक्शन में उतना अच्छा दावेदार नहीं होगा। वह लड़ेगी बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी। वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साइड रोल रहेगा। इसके लिए मुझे लगता है आगे जो विधानसभा और लोकसभा की इलेक्शन होगी, उसमें उद्धव ठाकरे की असली परीक्षा होगी। और मुझे लगता है आज जो सिंपैथी की वेव चल रही है, वो टिकी तो उद्धव ठाकरे को जरूर फायदा होगा। उद्धव ठाकरे को फायदा हो सकता है, लेकिन कृष्णा हेगड़े, जो भी एकनाथ शिंदे ने किया, आपको लगता नहीं कुल मिलाकर जो भी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, इससे चाहे बीजेपी हो और चाहे एनसीपी या कांग्रेस हो, फायदा तो बाकी दलों को ही हुआ। अब दोनों धड़े इतने कमजोर हो गए हैं, एकनाथ शिंदे की कोई पहचान नहीं, कोई और उनकी जमीन नहीं बीजेपी के सिवा, और उद्धव ठाकरे अब इतने कमजोर हो गए हैं कि बिना एनसीपी और कांग्रेस के उनके लिए अपनी ताकत को जो दिखाना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के एकनाथ शिंदे ने सिर्फ वही काम किया जिससे हर ऑपोजिशन पार्टी को फायदा हुआ है। अंकित जी, बिल्कुल नहीं। हमारी जो पार्टी है वो ताकतवर है, और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में 48 से 48 सीट हम जीतेंगे, और हमारी सरकार महाराष्ट्र में फिर से बनने वाली है। और आने वाले दिनों में जो बीएमसी इलेक्शन है और दूसरे महानगर पालिका के इलेक्शन है, वो सब इलेक्शन हम जीतेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शरद पवार साहब ने ही खुद सलाह दिया उद्धव जी को कि जब शरद पवार साहब खुद कांग्रेस से बाहर निकले माइनॉरिटी में, और उन्होंने खुद का पार्टी बनाया और खुद का जो चिन्ह है, सिंबल है, उन्होंने लिया और उन्होंने इलेक्शन लड़कर फिर से कांग्रेस के साथ सरकार बनाया। देखिए, मेरे पास क्योंकि शुरुआत में वो इंटरव्यू चलाना पड़ गया था, समय कम है, लेकिन जो आपने बात कही शरद पवार साहब वाली, तो कहीं ना कहीं आप ये बात मान रहे हैं कि शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी, ताकत अपनी दिखाई, उनकी ताकत बढ़ गई थी। तो आपको तो डरना चाहिए शरद पवार के एग्जाम्पल से कि अगर उद्धव ठाकरे उनकी ताकत से आ गए तो शायद आपके लिए और बड़ी मुश्किल हो जाएगी वहां पर, अगर उसी तरह की काम उन्होंने कर दिया तो। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफी चाहूंगा कि अभी फिलहाल मैं ज्यादा आप लोगों से इतना लंबा बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले एक इंटरव्यू हमें विदेश मंत्री जी का चलाना पड़ गया था, उससे हमारा समय कम हुआ। लेकिन बहुत अहम ये पूरी लड़ाई है, इसका जो असर है वो न सिर्फ महाराष्ट्र पे पड़ेगा, 2024 के चुनावों पर भी इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। एक ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, ये आपको बताते हैं। इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है, जो आज नेशनल एग्जीक्यूटिव होनी थी शिवसेना की, जो एकनाथ शिंदे के उनके हाथ में आ गई है, वहां पर आज शाम को शिवसेना की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें एकनाथ शिंदे को, जैसे हम बात कर रहे थे, अध्यक्ष शिवसेना का बनाया जाएगा। तो एकनाथ शिंदे अब शिंदे गुट के नेता नहीं, शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में खड़े होंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष थे, फिर पार्टी टूटी
और अब सिंबल मिलने के बाद जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें एकनाथ शिंदे को शिवसेना का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, उन्हें बनाया जाएगा। अध्यक्ष की काफी ज्यादा ताकत होती है और उसका असर शिवसेना के ऊपर दूरगामी जरूर पड़ेगा। सोहित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, सभी को लग रहा था कि अब शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे गुट से शिवसेना के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं एकनाथ शिंदे पे इसका असर क्या पड़ेगा और शिवसेना पर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, आज शाम को जो बैठक होगी, जिस तरह से हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, एक तो एकनाथ शिंदे को मुख्य नेता बनाया जाएगा शिवसेना पार्टी का और सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो एकनाथ शिंदे को दिए जाएंगे। यानी इसके बाद जो भी शिवसेना का फैसला करना है आगे जाकर वो एकनाथ शिंदे करेंगे। अब अंकित, इसमें एक जो कानूनी पेश क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले शिवसेना अध्यक्ष बाला साहेब ठाकरे थे, उनकी मृत्यु के बाद दरअसल एक नया पोस्ट बनाया गया। शिवसेना अध्यक्ष बाला साहेब ठाकरे को ही रखा गया था, फिर एक नया पोस्ट बनाया गया शिवसेना पक्ष प्रमुख। शिवसेना प्रमुख तो बाला साहेब ठाकरे थे, शिवसेना पक्ष प्रमुख एक पोस्ट बनाया गया था जो उद्धव ठाकरे थे। और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सवाल उठाया कि आपने इस तरह से अमेंडमेंट किया और आपने चुनाव आयोग को इसके बारे में बताया भी नहीं। तो जो चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को फैसला आया है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। इसलिए अब शिवसेना प्रमुख तो एक ही थे, वो थे बाला साहेब ठाकरे। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता होंगे और इसके लिए जो वोटिंग है वो आज शाम को होगी और यूनानिमसली उनका ये सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उन्हें दिए जाएंगे और भी कई सारे फेरबदल शिवसेना पार्टी के भीतर किए जाएंगे। अब कई ऐसे लोग हैं जो उद्धव गुट के साथ जुड़े हुए हैं, जो शिवसेना की जो ये पार्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका एक हिस्सा है, उन्हें हटाकर एकनाथ शिंदे अपने लोगों को वहां पर बिठाएंगे और इसके बाद जो भी पार्टी तय करेगी, ये जो राहुल शेवाड़े हैं ये गठ नेता हैं लोकसभा के शिवसेना के, इन्हीं को आज पत्र दिया गया है जो रूल नंबर 128 है जो अब शिवसेना को हो गया है। तो इसके बाद जो पार्टी की ओर से फैसला लिया जाएगा उसका पालन हर किसी को करना होगा और अगर नहीं करते हैं अंकित तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, तो कार्रवाई की ताकत उनके पास आ जाएगी, उनकी ताकत बढ़ जाएगी, विप उनके पास होगा। जो बाकी बचे हुए एमएलएज हैं उनके ऊपर डर भी मंडराएगा कि वो उस तरफ चले जाएं वरना उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सोहित, समय मेरे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त बड़े सवाल इंडिया का में और उसके बाद खबरों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। जुनैद नासिर हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। हरियाणा पुलिस के लिए मुखबरी करने के में जो आरोपी थे उनमें से 3 आरोपी हरियाणा पुलिस के लिए मुखबरी करते थे। पुलिस के लिए मुखबरी करते थे रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत। छापों के लिए तीनों को साथ पुलिस, हरियाणा की पुलिस कई बार साथ ले जाती थी। एनडीटीवी के पास गौ तस्करी के केस से जुड़ी हुई 4 एफआईआर की कॉपी हाथ लगी है। चारों एफआईआर में हरियाणा पुलिस ने इन आरोपियों को मुखबिर बताया था और चारों एफआईआर में मेवात के फिरोजपुर जिरका थाने में बुरी तरह से घायल जुनैद और नासिर को इसी थाने में ले जाया गया था जहां पर आरोप था कि ये आरोपी उनको अपहरण कर पीट कर इसी थाने में ले गए थे। पुलिस वालों ने आरोपियों को पकड़ा नहीं और ना ही घायल जुनैद और नासिर को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वहां से आरोपियों को इनके साथ जाने को कहा गया। अपहरणकर्ताओं ने, इन तीनों ने उनको फिर वहां से वो ले गए। रिंकू लोकेश ने जिरका थाने में फोन से बात भी की थी। ये भी अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और इसी से पता चलता है कि हरियाणा जो पुलिस है उसका पूरा जो रोल है इस केस में कितना संदिग्ध है और उसका अमानवीय चेहरा भी सामने दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की। पाकिस्तान के लाहौर वो पहुंचे हुए थे, वहां पर पाकिस्तानियों को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया। मौका था फैज फेस्टिवल 2023 का। उन्होंने 26/11 हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हम तो बंबई से हैं, हमारे शहर में हमला करने वाले नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि ये अगर शिकायत हिंदुस्तानियों के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उनके बारे में मुझे पता
फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियां चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहां का कोई टेलीविजन नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे, और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से। और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। कुत्तों के आतंक की खबर आए दिन सुनने में और देखने में मिलती है। इसी तरह की एक खबर हैदराबाद से आई, जो बिल्कुल दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जहां आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला करके एक मासूम की जान ले ली। रविवार को 5 साल के बच्चा अपनी गली में था, वहां पर कुत्तों ने उसके ऊपर हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बच्चे को एक तरफ एक कार पार्क में अकेले टहलता हुआ यह दिखाई पड़ रहा था, तभी वहां पर 3 आवारा कुत्ते पहुंचे और उस बच्चे पर काटते हुए और झपटते हुए दिखाई पड़े। बच्चा वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुत्तों ने उसे नीचे गिरा दिया और उसके बाद बड़े दर्दनाक तरीके से उसको खींचते हुए ले गए। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने उसे काटकर लहूलुहान कर दिया। तस्वीरें जो हैं वो देखकर लगता है कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।